तो पी ब्लॉक में मुझे कैसे पता चलेगा कि these elements are belonging to S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक? तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल हमने ऑलरेडी जब मैंने पढ़ाया था. Now in that case I have already discussed how will you decide कि this element is belonging to S block, this one is specially D block, and this one is P block. S block, P block and D block elements. So S block, P block and D block elements में it is depending on electronic configuration. Okay? Yes, Darshan. When last electron is entering in S orbital, then it is called as S block elements. When last electron is entering, that is the differentiating electron, is entering in p orbital, then it is called as p block elements. है ना? उसके बाद हमने बोला अगर ये D में जाता है last electron, that is the differentiating electron, then it is called as D block elements. So S block, P block, D block elements, it's totally depending on what? It's totally depending on differentiating electron entering in which orbital. ठीक? Differentiating electron is entering in which orbitals. तो please write down fast. पहले statement लिख लो. लिखो if last electron, please write down fast. If last electron is entering, if last electron is entering in p orbital, then it is belonging to P block elements. Okay? Then it is belonging to P block elements. तो 11th क्लास में 13, 14 and 15 था है, and 12th क्लास में 16, 17 and 18 है. ओके? देखो क्या बोल रहा हूं. This is P block और this is belonging to what? ये टोटल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? P orbital. Now if it is depending on P orbital can accommodate maximum 6 electrons. That's why there are 6, that is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Or you may write it as 13th को क्या लिखा? थर्ड but A, fourth but A, fifth but A, finally 8A. This is in Roman word. तो हम लोग को 11th क्लास में ये वाला पूरा पढ़ना है. ठीक? 13, 14 and 15. Any problem? बोलो. No, sir. Any problem? No, sir. No. है ना? तो हमारे टेक्स्ट बुक में, in our textbook, all properties are compared simultaneously 13, 14, 15. तुम लोग बोलो.
एक साथ पढ़ना है या उसको अलग अलग करके पढ़ना है? अलग अलग सर। अलग अलग। अलग अलग। सर कंपैरिजन फॉर्म अलग अलग करना है हम लोग को। सर कंपैरिजन One by one. फॉर्म में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। तो 13th में अगर याद हो मैंने क्या बोला था? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, बैगन को बोला है बैगन, आलू। आलू किसको बोलते हैं? पोटैटो के लिए। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो 1 by 1 देखते हैं, नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग के टेक्स्ट बुक में छोटा सा करके रख दिया है, क्यों? क्योंकि तीनों पे एक साथ करके दिया है तो जल्दी टॉपिक खत्म हो जाता, बस ये था। चलो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो फर्स्ट 1 लिखो, एक एक करके मुझे पढ़ना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं तुमको आइडिया दे दूं, दैट इज नथिंग बट सपोज यू आर राइटिंग लाइक पहला बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलो 5। दिस इज नथिंग बट 1s2 2s2 2p1। ओके, तो similarly for aluminum it will be 3s2 3p1। Aluminium, gallium is 4s2 4p1। Indium, this is 5s2 5p1। Thallium डायरेक्टली लिख सकता था 6p1। What will be the general electronic configuration right now? NS2 NP1। Yes. So general electronic configuration is NS2 NP1। ठीक, this is the general electronic configuration। This is general electronic configuration। This is general electronic configuration। Okay, next one मैं लिख सकता था। Now the next, अब इसी पर, अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप को पढ़ना है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? That is nothing but down the group, all the properties are with respect to down the group। Okay, everyone noted? Yes sir। Yes। Yes, चलो आ जाओ। all other general properties are first electronic configuration, second is atomic radii, atomic radii। okay, atomic radii, atomic radii। चलो देखो, ध्यान से देखो, मुझे उसका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। दिस इज नथिंग बट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला एटॉमिक रेडियाई। चलो आ जाओ, देखो सभी लोग बाद में लिखो।
बोरॉन 2s2 2p1 है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, टेल्यूरियम. So this is 2, 3, 4, 5, 6s2. तुम लोग मुझे ये बताओ कि on moving down the group size will increase or decrease? Increase. 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 क्यों increase होगा? Outermost Why shell. it will increase? Atomic radius increase. क्योंकि on moving down the group क्या होता जा रहा है? Shell increase होता जा रहा है. New cell Yes, increases. there is extra addition of the Cell. shell. But एक प्रॉब्लम है मेरे पास. वो प्रॉब्लम क्या है? Exceptional case of aluminium, and this was in NEET 2018. होना क्या चाहिए था? Ideally, radii of TL must be greater than radii of IN, must be greater than gallium. Note मत करो अभी. This one should be the case, but प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है. पता चलता है कि एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम से ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट है. लिख लो. अब लिखो. देखते हैं कि क्यों. आइडियली क्या होना चाहिए था? R of gallium must be greater than aluminium, but this is R of gallium से ज्यादा. नोट कर लिया? ये पहले नोट करो, फिर इसका रीजन लिखते हैं. चलो आ जाओ सब लोग लिखो. चाहे तो एज ए क्वेश्चन लिख लो. इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. ये नीट मैं बता रहा हूं ना, नीट 2018 का ये प्रॉब्लम है कि अरेंज द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेडियस ऑफ डिफरेंट एटम्स. मुझे ऐसा लग रहा था कि टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. तो प्लीज राइट डाउन. लिखो वाई रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन radius of gallium. Please write down. तो चलो आ जाओ. देखो लिखो. अभी देखो, पहले देख लो. On moving down the group there is extra addition of the shell. There is extra addition of the shell. तो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है स्पेसिफिकली? 1s2 2s2 2p6. मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गैलियम. वाई? दिस इज एटॉमिक नंबर. चलो अब देखो श्रावणी, इधर देख. बाद में लिखना, क्वेश्चन नहीं भी है तब पर भी. इसमें देखो 3s2 है ना, 3s2 3p1. गैलियम में जाओ. गैलियम 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 प्लीज सभी लोग इधर देखो. नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ. गैलियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
and 4p1. क्या हो रहा है एक्चुअली में इन बोथ वन, यहां पे देखो, दिस इज थर्ड 3s2 3p1, यहां पे 4s2 4p1 तो है, बट in between that there are 10 electrons which are coming in 3d, जबकि 2p में ऐसा 3p and 3s में ऐसा नहीं था. तो 10 electrons are entering in 3d orbital, though extra addition of the shell तो है, but poor shielding effect of d orbital electrons. तो अगर इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी में ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट, एल्यूमिनियम. पुअर शील्डिंग, आई एम नॉट सेइंग शील्डिंग इफेक्ट. इफ शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, रेडियस विल इंक्रीज. पुअर शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, है ना. तो डी ऑर्बिटल का डिफ्यूज शेप होता है, मैंने बताया भी था. अगर उस टाइम पर देखो तो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस में होता था, पी में होता था, डी में होता था, देन जाकर के एफ में होता था. तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट डी का बहुत ही कम है. जब डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज. यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, इसलिए ऐसा हो गया. सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो, इन एल्यूमिनियम there are in aluminum in aluminum in aluminum in aluminum there are no d electrons. In aluminum there are no d orbital electrons, there are no d electrons. While in gallium, सर देयर आर के बाद क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गई. there are no d orbital electrons. There are no d orbital electrons. While in gallium, while in gallium 10 electrons are entering in 10 electrons are entering in 3d orbital, in 3d orbital, which is having poor shielding effect, which is having poor shielding effect, which is having poor shielding effect, which is having poor shielding effect. Poor shielding effect, due to which poor shielding effect, due to which due to which due to which
due to which force of attraction between last electron and nucleus, due to which force of attraction between last electron and nucleus, last electron and nucleus, last electron and nucleus are higher in gallium as compared to aluminium, are higher in gallium as compared to aluminium. So radius radius of gallium will be lesser than radius of Al. तो एक ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d orbital electrons. Okay, shall I move forward? सर हाँ बोलो. ये सब पूरे पी ब्लॉक में होगा क्या? नहीं, सिर्फ इसी में है. ओके. बाकी सभी में एस में एक नहीं दो 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए. ठीक. यस सर. अभी भी किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं. नो सर. नो सर. नो सर. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वन लिखो, आयोनिक रेडियाई. नेक्स्ट वन इज आयोनिक रेडियाई. नेक्स्ट वन इज आयोनिक रेडियाई. नेक्स्ट वन इज आयोनिक रेडियाई. आयोनिक रेडियाई में हमने क्या किया? सभी पर 3 इलेक्ट्रॉन को रख करके देखा. बोरॉन पर 3+, Al पर 3+, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. ध्यान से देखो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं. अब वो प्रॉब्लम आया ही नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स को वो रोके, ऐसा नहीं होगा. डेट्स वाई इसका सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिख लो. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियाई विल इंक्रीज. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियाई विल इंक्रीज. ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100% टाइप का रहेगा पी ब्लॉक से कि एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपेयर करने के लिए. मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी. सर फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैंने बोला था आयोनिक रेडियाई इज इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. डिक्रीजिंग ना सर? इंक्रीज IN इंडिया वाला. ओह. इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्योंकि अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या कोई भी रोल नहीं है. डन. सर क्यों इंक्रीज होगा? या अब d ऑर्बिटल नहीं रह गया ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसके पहले क्या हो रहा था, ये देखो, प्रीवियसली क्या हो रहा था, जो ये p ऑर्बिटल है
इसके लिए ये क्या हो रहा था, डी ऑर्बिटल का कोई रोल ही नहीं था। आई मीन रोल का मतलब क्या था कि बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम क्रिएट कर रहा था। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब डायरेक्ट क्या हो रहा है, थर्ड सेल में ही गए ना सबके सब। Yes. ओके, Yes, sir. Got it. आयंस में देयर इज नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज इन न्यूट्रल एटम। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट वन। पता है इतनी जल्दी हम लोग के टेक्स्ट बुक में इसको खत्म कर दिया है कि यू कांट बिलीव इवन। एक पेज में हम लोग के पास पूरा 13, 14, 15 खत्म कर दिया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आयोनिक। नेक्स्ट वन इज सॉरी आयोनिक बोल रहा हूं, सॉरी। नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे समझ में आया सभी का कैसे कोर्स कंप्लीट हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट बुक को पकड़ करके करूँ ना तो हार्डली एक लेक्चर में हम लोग का जाएगा, 2-3 लेक्चर से ज्यादा नहीं जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था वो ऑलरेडी वी हैव डिस्क्राइब्ड वन। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of क्या बोलो, outermost cell of isolated gaseous atom। तो अब देखो तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो what should happen? तुम ही लोग बोलो। बोलो क्या होना चाहिए? चलो इधर देखो सभी लोग। भाई बोरॉन, एल्यूमिनियम डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता जा रहा है? डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा था। अगर डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज हो रहा था तो क्या होना चाहिए एक्चुअली में? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? अरे रेडियस इज force of attraction is decreasing, so it will require less energy. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा that will be nothing but आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Br नहीं है बाबा, बोरॉन है, सॉरी बोरॉन का। अब एक्चुअली में ऐसा है, मेरे पास ऑर्डर जो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था उस ट्रेंड को ये फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था बोलो? बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। अभी हमने क्या बोला? रेडियस किसका बड़ा है? रेडियस किसका बड़ा है? एल्यूमिनियम और गैलियम? एल्यूमिनियम का। तो क्या होना चाहिए? तुम्हें लोग बोलो। बोरॉन का सबसे ज्यादा के बाद गैलियम का सबसे ज्यादा, देन के बाद एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड गैलियम, एल्यूमिनियम, है ना? के बाद इंडियम। अब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है किसका? टेल्यूरियम का, सॉरी थैलियम का, है ना? थैलियम का आता है। थैलियम का क्या होना चाहिए था? सबसे
हेलियम का क्या होना चाहिए था सबसे सबसे कम। सबसे कम। बट आगे हम लोग देखेंगे इसी में ही एक और भी इफेक्ट हुआ करता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या होता है कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 2s which are coming in between। सर आपकी आवाज गई थी मैं। अब बोलो क्या बोल रहे हैं। सर आप एक बार रिपीट करेंगे क्या? आपकी सर आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही गई थी। थी। हाँ 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 हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होगा एक्चुअली में, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जो मैंने अभी तक नहीं कराया, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पता चलता है कि बोरॉन के बाद आना चाहिए था गैलियम का, बट हो जाता है किसका, तो ये रहता है भाई, बहुत ही उल्टा सीधा ट्रेंड है। इसीलिए सबसे ज्यादा कंपटीशन वगैरह में ग्रुप थर्ड के आया करता है, इसीलिए ग्रुप थर्ड का आ रहा आया करता है। ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूं इसके लिए, लिख लो प्लीज, पहले लिख लो, पहले लिख लो। पहले ये लिख लो, ये वाला ट्रेंड है, ये वाला होना चाहिए था ऐसा। हो गया क्या? डन सर। यस सर। डन। हम्म। ओके, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए तो मैं बोला हम लोग के टेक्स्ट में क्या किया है, एक पेज में 13, 14, 15 सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया है ऐसा करके। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, लिख लो, चाहो तो लिख लो, एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Tl is higher due to inert pair effect, due to inert pair effect। ओके, सर फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ चाहे तो लिख लो, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। टीएल का ना सर? हाँ टीएल के लिए स्पेशली। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम नाउ। नेक्स्ट लिख लो मेटालिक कैरेक्टर, नेक्स्ट वन प्लीज, मेटालिक कैरेक्टर। सर आयोनाइजेशन की वो अभी बताया वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ मैंने बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Tl इज हायर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डन सर। ठीक है ना। चलो बाबा नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग लिखो मेटालिक इफेक्ट, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर,
मेटेलिक कैरेक्टर, बोलो क्या होना चाहिए? Metallic character Increase. on moving down the group. What is metallic character? To lose, tendency to lose electron, है ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हम लोग का साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज करता जाएगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लिख लो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। On moving down the group, metallic character is increasing. On moving down the group, metallic character is increasing. On moving down the group, metallic character is increasing. Okay? On moving down the group, metallic character is increasing. ये सभी क्या है? एलिमेंट्स का है, मतलब सभी ग्रुप का। चलो नेक्स्ट लिखो। यही प्रॉपर्टीज हम लोग को सारे ग्रुप के लिए पढ़ना रहेगा। डेंसिटी क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी शुड इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जल्दी बोलो सभी लोग, फास्ट। इंक्रीज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। यस। क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है, बट मास इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर वॉल्यूम फैक्टर। ये सभी का होता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी विल इंक्रीज। प्लीज राइट डाउन। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी विल, on moving down the group density will, on moving down the group density will increase, on moving down the group density will increase, सर on moving down the group। हाँ सर एक डाउट था। हाँ, मेटल। पहले लिख लो, ओके लिख लो फिर मैं क्लियर करता हूँ। हाँ ओके सर। हाँ, देखो, on moving down the group density is increasing। उस लाइन को छोड़ के mass and volume both are, mass and volume both are, mass and volume both are increasing, mass and volume both are increasing, but mass factor is dominating over, 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 but mass factor is dominating over volume factor। Okay, so on moving down the group metallic character is increasing, density is increasing। हाँ अब बोलो, कोई तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। सर मैं पूछ रही थी कि मेटेलिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा क्या गैलियम से? नहीं, डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर।
हाँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है ना। ओके, बट एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है ना गैलियम से। हाँ, वो तो रहता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, बट डाउन द ग्रुप जाने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नॉर्मली इंक्रीज करता ही करता है। ठीक, ये सब एक्सेप्शनल उल्टा सीधे हो जा रहे हैं ना। यस। हाँ, बट डाउन द ग्रुप जाने से सभी का मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके ओके सर। हाँ हाँ हाँ। चलो भाई, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है। नो सर। नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पहले उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशली तुमको या तो फिर मैं फोर्थ ग्रुप में करा करके देता हूँ, मतलब फोर्थ मतलब कार्बन फैमिली में करा करके देता हूँ। Inner pair effect is important with respect to board exam as well as competition exam, not a problem, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ओके, चलो आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट मैं लिख रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, लिखो लिखो रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो ऐसे करके अलग अलग रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ हैलोजन, ऐसा करता हुआ। तो मैंने लिखा रिएक्शन विथ हैलोजन। तो दिस इज जनरल एम। एम क्या हो सकता था, बोरॉन से लेकर के बैगन, आलू, गाजर इन थैला तक। और इन जनरल मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये क्या बना लेगा, सभी ग्रुप में तुम ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज, बोलो 3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लूज, 3। 3। तो 3 बॉन्ड मैक्स बना सकता है। अगर 3 बॉन्ड मैक्सिमम बनाया तो व्हाट विल बी, इट विल बी लाइक AlCl3, BCl3, कुछ ऐसा है ना। तो अब अगर तुम इसको बैलेंस करना चाहो तो ये 6 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो इधर भी 2 हो जाएगा। ओके, यस सर। हाँ सॉरी, तो ये लिख लो या फिर स्टेटमेंट लिख लो। when third group elements are reacting with halogen, when third group elements are reacting with halogen, third group elements are reacting with halogen, then they are forming, then they are forming, then they are forming, then they are forming trihalides, then they are forming trihalides. Except TL, except TL, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग, या TL इज फॉर्मिंग
monohalide is forming monohalide due to, आ गई ना बात, due to inert pair effect, due to inert pair effect। अब हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट देख ही लेना चाहिए, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट मुझे देख ही लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मुझे देख ही लेना चाहिए, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि लाइट चली गई है बाय द वे, बट कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हेडिंग लिखा मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ लाइट चली गई है बिल्कुल ऐश्वर्या, कोई बात नहीं, बट मोबाइल से कर रहे होंगे ना सभी लोग, तो हमारे यहाँ की लाइट गई है, जरूर नहीं है तुम्हारे यहाँ की लाइट गई होगी। सर हाँ मेरी यहाँ पे की गई है, मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन हुआ। हाँ यहाँ पर भी गई है। यहाँ पे गई है, सभी लोग करवे नगर में रहते हैं क्या? हाँ सर लाइट गया है, अभी मोबाइल से ज्वाइन हुआ। करवे नगर में मैं भी रहता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ सर की लाइट। वारजे में। सर हाँ बोलो सर, आप थोड़ा सा धीरे धीरे बताएंगे क्या, क्योंकि मोबाइल का टॉर्च लेकर। ओ सर यहाँ नहीं आई है। कोई सर बात यहाँ नहीं आई नहीं, है। हमारे यहाँ आ गई तो सबका काम हो सकता है ना, मेरे यहाँ का जरूरी है लाइट। यस सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, then 5p6। now सर कोई मैं सेपरेटली, बैकग्राउंड में। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। किसी का माइक ऑन है। हाँ किसी का माइक ऑन है, वो गा रहा है। किसी का माइक ऑन है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ मेरा है राइट नाउ। सॉरी सर मेरा था। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज 5d10। चलो ध्यान से देखो, अरे हमने यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख दिया था ना, देखो एक लाइन में कि 6s to 6p1, बट ये देखो 6p और 6p और 6s के बीच में 4f 5d ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। 6p एंड 6s के बीच में 4f एंड 5d, 7 ऑर्बिटल ऑफ f, 5 ऑर्बिटल ऑफ सर d। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक होने लग गई है? नो सर। नहीं हो रही। नहीं हो रही है भाई। ठीक चलो आ जाओ। देयर आर तो सर कैन आई रिजॉइन अगेन? हाँ श्योर। देयर आर 12 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल ऑफ f, 5 ऑर्बिटल ऑफ d आर कमिंग इन बिटवीन 6 and 6p। बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। 6p यहाँ पे है, 6s यहाँ पे है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, तो दिस 6s इलेक्ट्रॉन्स will not easily participate in the chemical bonding. Yes or no? यहाँ पे देखो बोरॉन में, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, 2s 2p के इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग,
लेकिन यहाँ पर 6p and 6s के इलेक्ट्रॉन्स में there are so much energy difference between 6s and 6p. There are so much energy difference between 6s and 6p. That's why this 6s electrons will not easily participate in the chemical bonding. That's why it is called as inert. किसके? 6s के इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन, उसी को पेयर बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या नाम दिया? इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके. इसीलिए जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं. बाकी सभी में 3-3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे. That's why they are forming 3 bonds. This is forming only one bond. Which one? Tellurium, due to inert pair effect. What is inert pair effect? 6s orbitals are not easily participating in the chemical bonding. 6s electrons are not easily participating in the chemical bonding, which is called as nothing but inert pair effect. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? इनर्ट पेयर का स्टेटमेंट लिखवा देंगे क्या? हाँ, मैं लिखवा दे रहा हूँ. पहले समझ में आया क्या? सर फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा. ये तुम्हारे पास उसमें आएगा बोर्ड एग्जाम में. I mean 11th क्लास में फाइनल पेपर होगा जब भी 11th क्लास का, तो वहां पे तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट और डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट. तुमसे बोलेगा डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके. तो तुमको टेक्स्ट बुक वगैरह क्या वर्ड यूज करता है? वो वर्ड यूज करता है रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का मतलब आराम से. तुमसे मैं बोल दूं तुम कितना रिलक्टेंट हो गया है, मतलब तुझे कोई चिंता ही नहीं है. बिल्कुल वैसे ही है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई चिंता नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत नीचे है. Since these 6s electrons are deep buried with respect to 6p, since 4f orbital, 5d orbitals are coming in between 6p and 6s, that's why these 6s electrons will not easily participate in the chemical bonding, which is called as inert pair effect. समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. अगर समझ में आया तो स्टेटमेंट लिखवा दूं? यस सर. तो वो बुक वगैरह एक लाइन में वर्ड यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिलक्टेंस. ठीक है ना? रिलक्टेंस ऑफ 6s orbitals to participate in the chemical bonding is called as nothing but inert pair effect. So please write down statement of inert pair effect. तो जो भी 14th, 13th, 14th, 15th ग्रुप है, सभी में इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा. सभी में इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा. और सभी के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है, सभी का यही रहेगा. एवरीवेयर. ठीक है ना? सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट का. लिखो रिलक्टेंस ऑफ 6s orbitals. Reluctance of 6s orbitals. Reluctance of 6s orbitals electrons. Reluctance of 6s orbitals electrons. Reluctance of 6s orbital electrons. Reluctance of reluctance of 6s orbitals electrons to participate in chemical bonding. सर इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या है? Reluctance to 6s orbital electrons to participate in chemical bonding. Participate in chemical bonding is called as
is called as inert pair effect. Is called as inert pair effect. पहले ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फॉर TL, लिखो। हो गया? रिटर्न प्लीज। अब लिखो, देखो, इन बिटवीन 6s एंड 6p ऑर्बिटल in between 6s and 6p orbital, in between 6s and 6p orbitals, in between 6s and 6p orbitals, 4f and 5d, 4f and 5d orbitals are coming. 4f and 5d orbitals are coming. Are coming. 4f and 5d orbitals are coming. ठीक है ना? In between 6s and 6p, 4f and 5d orbitals are coming, due to which there is so much energy difference. Due to which there is क्या बोला हमने लास्ट में स्टेटमेंट प्लीज? Due to which there is so much energy difference. Due to which there is so much energy difference between 6s and 6p. There is so much energy difference between 6s and 6p. That's why 6s electrons will not participate in. That's why 6s electrons will not easily participate in chemical bonding. ठीक है ना? That's why 6s electrons will not easily participate in chemical bonding. Which is called as inert pair effect. कहने का मतलब वैसा भी लिखा सकता था और ऐसा भी लिखा सकता था. ओके, काही प्रॉब्लम आहे इतना पर